Hello everyone, I am Rashid Khan from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Class 10th, the chapter number 3 on which we have already discussed some of the points regarding to the metals and non-metals. Here we will have to study about some remaining portion of these chapters. The chapter in which there is a characteristics given, and then after we have to study about their metallurgical effect, the impurities, the extraction of metals. So according to the point, we will have to firstly discuss about the types of metals, where they can be find the number of metals that are most reactive, some of the metals are less reactive, and some of them are moderate reactive, that means the medium reactive. Or we can say there are some of the reactivity series on which the metals can be represented. So if there is a metal that is the most reactive element, most reactive metal, that can be kept on the top of the reactivity series, and into the like of potassium, calcium, sodium, magnesium, these are most reactive metal. Rest of the other are the least reactive metal are found in a combined state. Why? Because they are most reactive, so they can be combined to one another very rapidly. And in the respect of the others, there is least reactive metals like lead, copper, iron, silver, platinum, etc. These are the least reactive. That means they couldn't react with another. So they are found in a free state. And the second one is, if there is aluminum, copper, iron, these type of metals, they can be remain in the medium series, middle of the series. So this one is not very reactive or not very less reactive. So these are the different types of the metals we can obtain on the basis of their states, on which we have to discuss today. तो क्या पढ़ चुके हैं इसमें? हमने पढ़ा हुआ है द ओर्स पढ़ लिया, राइट? ओर्स हो गया, और ओर्स के टाइप हो गए, गैंग बताया गया है, गैंग या फिर मैट्रिक्स, फ्लक्स। अच्छा, आइए ठीक है, हम लोग देख लेते हैं ओर्स के मोस्टली कौन कौन से टाइप होते हैं। मैंने लिखाया हुआ था ना, कुछ लिखाया गया था आपको? नहीं? अच्छा ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज द ओर्स। ओर्स है क्या, या इनको हम ओर्स क्यों कहते हैं? मिनरल वाला बताया गया था, मिनरल वाले जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बताया गया था। हाँ, तो अभी सिर्फ फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट ही बताया गया है। दूसरा सेक्शन है। चलिए ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, मिनरल्स, ओर्स एंड टाइप्स ऑफ ओर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा कि मिनरल्स कौन से होते हैं। हमने एक बताया था जो कंबाइंड फॉर्म में होंगे, कंबाइंड स्टेट में है एक, और दूसरा फ्री स्टेट में है। ये कौन कौन से हैं मेटल? कंबाइंड फॉर्म में कौन से होंगे? जो मोस्ट रिएक्टिव होंगे, राइट? और फ्री स्टेट में कौन से होंगे? जो क्या होंगे? लीस्ट में होंगे, या हम इसको कह सकते हैं लीस्ट रिएक्टिव है ये। तो लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव हो गया। जो बचा बीच वाला वो कौन सा है? वो है मॉडरेट रिएक्टिव। हाँ, मीडियम जिसको कह सकते हैं, मॉडरेट है, मीडियम है।
अब ये मीडियम वाले क्या होते हैं? मीडियम वाले ही मिलेंगे आपको किस फॉर्म में? मिनरल्स के फॉर्म में. एंड मिनरल्स आर व्हाट? द मिनरल्स आर दोज दैट आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड. आपको पता है मिनरल्स प्लांट को कहां से मिलता है? मिनरल प्लांट कहां से मिलता है? उनके रूट, हाँ, और रूट कहां पे रहते हैं? सॉइल में रहते हैं. इसका मतलब जो मिनरल्स होगा वो मिनरल्स हमें कहां से मिलेगा? अर्थ क्रस्ट से. अर्थ क्रस्ट से मिनरल मिलेंगे. किस फॉर्म में? के फॉर्म में. इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट मींस देयर इज अ डिफरेंट इनऑर्गेनिक substances are mixed together to mix to one another, that is called as their compounds. They are not even free or in a combined state, so they are found in the compound forms. Why? Because they are naturally found in the earth crust in the form of compounds, right? अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपका कॉपर पायराइट हो जाए, या क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्म है, या पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्म है. ये सभी किस फॉर्म में रहेंगे? दे आर ऑल फाउंड इन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. CuF3S2. ये कॉपर पायराइट है, बस कैसे मिलेगी? ये कंपाउंड फॉर्म में, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में रहेंगे. बहुत सारे मिनरल्स कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे, और वो मिनरल्स क्या होगा? एक सोर्स होगा किसका? इस मेटल का. अब यहाँ पे कॉपर पायराइट है CuFeS2, दैट मीन्स कि ये कंपाउंड के फॉर्म में मिल रहे हैं, और यहाँ पे आयरन है, और आयरन के साथ सल्फर भी है. तो ये कंपाउंड फॉर्म में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, और हमें इसमें क्या मिलेगा? हमें इसमें कॉपर मिलेगा. और ये कॉपर क्या है? कॉपर वाले जो मीडियम क्लास के हैं या मीडियम रिएक्टिव हैं, जो बहुत ज्यादा मॉडरेट रिएक्टिव, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत इसी में डिस्टर्ब करते हैं. तो हम कहेंगे ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में क्या हो रहा है? पाया जाएगा. और वो ऐसे रहते हैं जैसे कि बहुत सारे सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेटेड फॉर्म में रहेंगे, और यही कॉन्जुगेटेड फॉर्म क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड पोर्स. ये क्या कहलाएंगे? पोर्स कहलाएंगे, जिसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, और जिनमें सोर्स ऑफ मेटल भी होता है, जहां से हमें मेटल भी मिलता है. दैट इज व्हाट वी कैन कॉल द पोर्स. अब पोर्स की तरह के पोर्स हैं. एवरी ओर इज अ मिनरल. एवरी ओर इज अ मिनरल, बट नॉट एवरी मिनरल इज अ ओर. ओके, every ore is a mineral, but not every mineral is a ore. जैसे हमने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा था ना, एक आपने पढ़ा था all the alkalis are bases, but not all the bases are alkalis. टर्मिनोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको थोड़ा सा उसको आप अपने दिमाग में बैठा रखें. ओके, अब हम इसके बारे में बात करेंगे. कौन सा? ओर्स के बारे में. ओर्स है क्या एक्चुअली, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. ओर्स. ओर्स किसको कह सकते हैं? ओर्स क्या होते हैं? ये ओर्स क्या हो सकते हैं? सोर्स जिनको कह सकते हैं, ओरिजिन जिनको कह सकते हैं, या हम इनको क्या कह सकते हैं? दिस इज द हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज द हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ अ मेटल्स और द मेटेलिक ऑब्जेक्ट हैविंग मेटल्स और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ पर्टिकुलर प्लेस, और इट इज फाउंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस. कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जो कौन से फॉर्म में हो, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलेंगे. किस फॉर्म में? कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, या कह सकते हैं उनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है. या हम कह सकते हैं द मिनरल्स आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स
in the form of a metal when find in a particular place, that is called a ores. क्या है ये? जहां पे मिनरल्स होगा उसी मिनरल पे पाए जाने वाला जो प्लेस है, उसी मिनरल पे, मिनरल के साथ में पाए जाने वाले जो मेटल्स होंगे वही क्या कहलाएंगे? उसके ओर्स कहलाते हैं। या फिर इसको एक बार और समझ लीजिए, इट इज द फॉर्म ऑफ अ मिनरल इन विच द मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड और कैन बी एक्सट्रैक्टेड, दैट इज कॉल्ड एज आवर ओर्स। व्हाट एक्चुअली it is what? It is the source, or it is the origin, or it is the type of a minerals. It is the form of a mineral where is the metal can be found in a high concentrated form, or might be one minute. So it is the form of a mineral in which the abundant form or a higher concentration of a metal can be obtained at such a place. This or a particular place or such a place, this is called their ores. वहां से जहां पे बहुत सारे मिनरल्स हैं और मिनरल्स में ही हाई कंसंट्रेशन में क्या रहेगा? मेटल प्रेजेंट रहेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ओर्स, जहां से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये प्लेस है, इट इज द फॉर्म ऑफ अ ओर, सॉरी, इट इज द फॉर्म ऑफ अ मिनरल from which the high concentration of a metal can be extracted. That particular place or that particular site is termed as their ores. ये क्लियर हो गया सबको? मिनरल का वो फॉर्म जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन में मेटल प्रेजेंट होता है और उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऐसे प्लेस को, ऐसे पर्टिकुलर साइट को हम क्या कहेंगे? वो कहलाएगा ओर्स। बहुत सारे ओर्स के फॉर्म, या हम कह सकते हैं, यानी हम जितना भी मेटल लेते हैं जरूरी नहीं है वो मेटल कैसे मिले, हमें एज यूजुअल वेरी इजी फॉर्म में मिल जाए, क्योंकि उसका क्या होता है? एक्सट्रैक्शन करेंगे, रिफाइन करेंगे, तब जाकर के हमें वो मिलेंगे। तो यही है, ये मिनरल के फॉर्म है और इसी मिनरल के फॉर्म में बहुत सारे मेटल प्रेजेंट होते हैं और यही मेटल हम लोग क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। यही मेटल एक्सट्रैक्ट होता है और एक्सट्रैक्शन के बाद हमें प्योर फॉर्म में मेटल मिलेंगे। तो ये कौन से फॉर्म में है, किस टाइप के हो सकते हैं? ये मेनली किस टाइप के होते हैं? मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोराइड, ऑक्साइड, क्लोराइड। ये 3 टाइप के क्या है? आपके ओर्स हैं। 1 मिनट। और दूसरा है एक और, ऑक्साइड, क्लोराइड है, कार्बोनेट। ये फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जितने भी ओर्स हैं मोस्टली इसी फॉर्म। तो फिर आगे बढ़ने दो, बीच में फिर डिस्टर्ब ना करो, रेज हैंड करके डिस्टर्ब करते हो, पता नहीं कौन है। किसी को कोई आइडिया है जी ये सब कौन है? एलियन नहीं ना है, पता नहीं कहां से आते हैं। ओके, हाँ जी, मदन कौन है? मदन मोहन, नोट कर लीजिए। मेटल है, ये ओर्स है और इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ ओर्स। सबसे पहले देखिए हमारे पास एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम के ओर्स क्या होंगे? यहाँ पे इसके ओर्स होते हैं बॉक्साइट। हाँ जी, लेकिन आप बॉक्साइट ही नहीं कर सकते, इसके साथ 2 ओर्स हैं इसके, बॉक्साइट है और साथ में क्रायोलाइट है। लेकिन जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट इजी होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इजी होगा, इसलिए आसानी से हम लोग बॉक्साइट का यूज करके एल्युमिनियम को ले लेते हैं। लेकिन क्रायोलाइट भी इसका एक फॉर्म है जिनकी वजह से मिलेंगे। अब इस ओर के आपके नाम क्या है? बॉक्साइट का जो फॉर्मूला है, इसके लिए तो एक स्पेस छोड़ना चाहिए था।
फॉर्मूले और ये टाइप। तो अब देखिए बॉक्साइट का फॉर्मूला जब अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, Al2O3 into 2H2O, ये आपका बॉक्साइट है। क्रायोलाइट के फॉर्म में भी क्या होगा, जहां पे जो चीज हम जैसे चाहेंगे, हमको चाहिए क्या, हमको एल्युमिनियम चाहिए, तो जिसके अंदर हम देखेंगे ये बहुत सारे इसके साथ प्रोडक्ट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, फिर वाटर मॉलिक्यूल है, एडेड है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एल्युमिनियम। तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है वो उसमें मिला होना चाहिए या वो मेटल उसमें होना चाहिए जिससे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा है Na3F AlF6 Na3AlF6। अब ये क्रायोलाइट है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इस वजह से क्रायोलाइट के प्लेस पे बॉक्साइट का यूज करके एल्युमिनियम को इजीली एक्सट्रैक्ट कराया जा सकता है। अब इसमें देखिए इसका Na3AlF6 Na3AlF6 ये बहुत ही टफ है, कह सकते हो बहुत ज्यादा टाइम टेकन है, लेकिन जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सिर्फ एल्युमिनियम से ऑक्साइड को निकालना है, एल्युमिनियम अलग हो जाएगा, ऑक्साइड अलग हो जाएगा, और इसका जो सोर्स है वो क्या है, ऑक्साइड है। और यहाँ पे फ्लोराइड है, एल्युमिनियम फ्लोराइड, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड था, एल्युमिनियम फ्लोराइड है, तो ये वाला सोर्स किसका हो जाएगा, फ्लोराइड का। ये टाइप ऑफ सोर्सेस है। Na3AlF6 ये है क्रायोलाइट। क्लियर? ओके, दूसरा है, अब हमें चाहिए क्या, कॉपर चाहिए। कॉपर तो आपको पता है, कॉपर पाइराइट यूज कर सकते हैं। कॉपर पाइराइट, अब इसके फॉर्मूले हैं CuFeSi2। तो पाइराइट का फॉर्म ज्यादातर यूज होता है, लेकिन इसके पास और भी है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉस्फर कहते हैं। CuFeSi3 CuFeSi3 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे है CuFeS2 SI नहीं, CuFeS2 ये फेरस का फॉर्म है। अगर फेरिक का फॉर्म होता तो S3 होता, इसलिए मुझे S3 याद हो रहा था। कॉपर पाइराइट CuFeS2। क्लियर है? देखिए इसके साथ एक और है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जगह पे अगर हम कोई और एक्सट्रैक्ट ले लें, सॉरी कोई और कोर्स ले लें, तो क्या वो इजी होगा या कॉपर पाइराइट का यूज हो। तो कॉपर ग्लांस है, इसके नीचे फॉर्मूला लिख दें, वहां पे क्लियर नहीं हो रहा। तो कॉपर ग्लांस में आप देखोगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा CuF2। Cu और आयरन है, सल्फाइड है, तो ये आपका जो कोर्स हो जाएगा वो सल्फाइड का फॉर्म हो जाएगा। और उसके टाइप अलग है, इसके लिखते जाएंगे। इसके बाद एक और कॉपर का है, कॉपर का दूसरा है, एक फॉर्मूला और है जिसको हम लोग क्यूप्राइट कहते हैं। कॉपर क्यूप्राइट या कॉपर पाइराइट है, और ये कॉपर ही का यूज करके इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं क्योंकि इजीली ये हो जाएगा। जिस फॉर्म में इजीली होगा तो इसका यूज किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग बात